চোদ্দই জানুয়ারি কলকাতা কর্পোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের উদ্যোগে বৈতুলমল কেলা বাগানে ২০ জন দম্পতির শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। যারা নিজেদের মেয়ের কিংবা ছেলের বিয়ে ঘটা করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন কিন্তু অর্থের অভাবে তা বাস্তবায়িত করতে পারেন না, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই আজকের এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছেন। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু সেন এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমস্ত নিয়মকানুন মেনে পর্যাপ্ত পরিমাণে দিনমোহরের বিনিময়ে একেবারে মুসলিম মতেই ২০ জন দম্পতির বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন নব দম্পতির পরিবারের হাতে ফল, মিষ্টি এবং বহু আসবাবপত্র সহ একাধিক উপহার তুলে দেন। সবে প্রথম হচ্ছে আল্লাহ কা শুক্রিয়া হ্যাঁ যে আমাদের ২০টা মেয়ের বিয়ে এখন সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী মেয়েকে আগে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইজাজত লি, তারপরে হচ্ছে ছেলেদের এখানে মাত্র 4 জন বসে আছে, 15টা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এদেরকে জিজ্ঞেস করব, মেয়ের পারমিশন নিয়ে চলে এসেছি। এবার এখানে নিকাহটা হবে, দোয়া হবে। এই দোয়ার পরে আজকে মাস ম্যারেজ সম্পূর্ণ হবে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, এই ঠিক আমাদের যেটা লেখা আছে না, অনলি লেডিস, এই ভিতরে গিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে আমরা একটা মেয়েকে বা একটা ছেলেকে, মানে একজন কাপলকে, আমরা তো শুধু মেয়েকে দিই না, মেয়ে ছেলে দুজনকে মিলিয়ে আমরা জিনিসপত্র দিই। আমরা তাকে বলি সাজো সামান, ঘর গৃহস্থী কা সামান। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা গেছেন ওখানে? গেছেন কি না? আপনারা গেছেন, না গেলে একটু যাবেন, গিয়ে নিজে দেখে নেবেন। আমি প্রায় 80টা, মানে গত বছর 72 হয়েছিল, এবার প্রায় 80-র কাছাকাছি, মানে 80 হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, আপনারা নিজেরা ওখানে গিয়ে দেখবেন আমরা কি কি জিনিসটা দিই। এভরিথিং, যা একটা ঘরের, যা একটা বাবা নিজের স্বার্থ মতন, নিজের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যেটা বাবা মেয়েকে দেয়। আমাদের মেয়ে, এই যে আমরা যারা এখানে আছি সবাই এখানে, আর আমাদের ওখানে যারা এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার আছে, আমাদের যারা গার্জিয়ানরা আছে, এদের সবার আমরা মনে করি আমাদের মেয়ে। আজকে আমাদের মেয়ের বিয়ে, আমরা খুব আনন্দিত, খুব খুশি। আমরা চোখ দিয়ে বলতে পারবো না। এই ঘাম, এই যে এটার কোনো বিকল্প না। বলছো গা জ্বলছে। जैसे भाई एक अहम सवाल, बीच में हम लोग देख रहे थे आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे ऐसे सूरत हाल में हम लोगों ने जब जायजा, हमारे न्यूज ने जब जायजा लिए, यहाँ के गरीबों के गरीब लोग आपको दुआ देते हैं, तो जब जायजा लिया आप, तो ऐसे उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले, आपको ये नहीं लगता कि उनके मुंह पे ये तमाचा लगा? एक मिनट, मैं बोल दूं, आराम से आप सवाल करोगे, मैं जवाब दूंगा। और बरकत भाई, आप घबराएंगे नहीं, मैं ठीक जवाब दूंगा, एकदम टेंशन मत ले। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे दुआओं से नवाजा है कि आपने जायज़ा भी लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ा लिया। और आपने कहा कि किसी ने अगर छवि खराब करने की कोशिश की है, तो मैं आपको बताता चलूँ, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक सिर्फ 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 अल्लाह है। ना मैं मोहम्मद जसीम उद्दीन, किसी का टिंका बराबर भी बाल भी बेका करने की ताकत मुझ में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर कोई है तो वाहिद अव्वल व आखिर, जिसे कहते हैं हम पाक परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही सबसे बड़ा मालिक है। फ़यही आलाही रब्बी को मातु कज़्ज़िबान। इसलिए मैं, आपने जो सवाल किया, मैं बहुत मजबूती से जवाब देना चाहता हूँ कि किसी के रुकने से कारे जहाँ नहीं रुकता, कोई रुके तो रुके, कारवां नहीं रुकता। क्योंकि ये कारवां चलाता है अल्लाह, और अल्लाह जिस कारवां को चलाए उसे कोई रोक नहीं सकता। कुरान का एक आयत है, मैं आपको बता दूं उसका तर्जुमा करके, कि मैं अगर किसे बर्बाद करना चाहूं तो कोई उसे आबाद नहीं कर सकता, और मैं किसी को अगर आबाद करना चाहूं तो हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों लोग भी उसका बाल वाका नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं, अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह माबूद है, और अल्लाह ही अजीम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अक्सर आपको देखा गया गरीबों के लिए मसीहा, आज के नए जोड़ों को क्या मैसेज देंगे? बस हमारी नई ख्वाहिशात हैं हम सब की। इज्तिमाई शादी है और इज्तिमाई किरदार है। मैं मोहम्मद जसीम उद्दीन, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इज्तिमाई शादी, देख लीजिए, इज्तिमाई किरदार है, हम लोग सब मिल के। और आज आप घर में जाके इत्मीनान से यूट्यूब देखेंगे, लाइव चल रहा है,
आप फेसबुक देखेंगे लाइव चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ शहर कलकत्ता से, टीटागढ़ से, आपका वो काशीपुर बेलगछिया से, इतराफ के तमाम जगह स्ट्रीट, कोलूर रोड तो फाक्स सर्कस रिपन स्ट्रीट तो है ही है, यहाँ तक के टीटागढ़ से, कमरहट्टी से और आपके सौदागर पट्टी से लड़कियां तो है मगरबी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आई है, लेकिन यहाँ जो मेहमान आए हैं पूरा कलकत्ता के इतराफ से जो है यहाँ मेहमान आए हैं और अभी आने का सिलसिला जारी है। गुलाम रब्बानी भी एक आए हैं और अभी और भी कुछ लोग आ रहे हैं, सारे कलकत्ता के। मैं नाम आप लोग देखें खुद, मैं जब देख रहा था, जब सब स्टेज में थे तो आप लोग मुस्कुरा रहे थे कि आप लोगों ने ये शहर कलकत्ता के ये ऐसे ऐसे शख्सियत हैं कि जो जीनत है महफिल की, आज वो तमाम कलकत्ता के जो महफिल के जीनत है आज यहाँ पर आए। मुझे बेहद खुशी है। मैं बारी बारी करके नाम नहीं ले सकता है, आमिर मेरा नजर पड़ रहा है, ये इसको चीनिए। देखिए जब भी वो फलस्तीन गजा की बात होती है, आमिर को आप देखिएगा कितना लाजवाब बच्चा है, वो भी आज यहाँ पर 4 घंटा से है। और इस तरह से देखा, आपको चिंते हैं आप शाहरुख कुरैशी को, शाहरुख कुरैशी भी देखिए वहाँ काशीपुर से आया, वही शाहरुख मेरा मुंह देख रहा है, शाहरुख कुरैशी है, गुलाम रब्बानी है और इससे पहले आपने देखा साद, अभी साद नमाज पढ़ने गया, साद आ रहा है। तो अब जो मैं नाम बता रहा हूँ आप लोग जानते हैं, ये कलकत्ता के मशहूर और मारूफ शख्सियत है। ये लोग आते हैं और जब मैं कहता हूँ कि तुम लोग आते हो, दावत नहीं दिया, तो मुझे कहता है कि मुझे कार्ड नहीं भेजा, तो कहते हैं कि हम सीखने चाहते हैं, बैतुल माल से सीखना चाहते हैं और हम लोग यहाँ से सीख से जाएंगे। और हम लोगों के अंदर में भी जज्बा होगा, अगर 20 लड़की का नहीं करेंगे तो हम इंडिविजुअली एक लड़की का शादी का जिम्मेदारी लेंगे जसीम भाई। तो हम लोगों का मकसद यहाँ पर में है, नुमाइश नहीं है। हमारे खुर्शीद आलम पांडे साहब है, बरकत साहब है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ यहाँ जितने लोग हैं, कोई भी नामो नमूद के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पर में नुमाइश के लिए नहीं, बस हम एक नेक अमल है जो अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर पाड़ा में इस तरह की शादियों का एहतमाम हो। अगर इस तरह का इज्तिमाई नहीं हो, इंडिविजुअल हो, कोई एक आदमी आके कहे कि एक लड़की की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कोई आके कहे चलो 2 आदमी मिलकर के एक लड़की की जिम्मेदारी लेते हैं। एक जमाना था जब लोग मिल के कुर्बानी करते थे, चलो भैया 4 आदमी मिलके कुर्बानी कर ले। बस हम लोग यही चाहते हैं कि 4 लोग खड़े होके कहे चलो एक बच्ची की घर बसा दे, एक बच्ची की शादी करे। और अभी आपका सवाल है वो जमशेद का, तो मैं बता दूं हम लोग सब के तरफ से दोनों जो जितनी भी बच्चियां हैं 20 जोड़ों को हम लोग दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली की जैसी मोहब्बत इन तमाम बच्चियों में अता फरमा दे। ए अल्लाह, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत इन बच्चियों में, इन जोड़ों में अल्लाह पाक अता कर दे। ए अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अज़वाजी ज़िंदगी इनकी जो है बेहतर हो। ए अल्लाह इस निकाह बरकत है, निकाह बड़ा बाबरकत है। अल्लाह निकाह की बरकत से अल्लाह वो दोनों बच्चियों के घर को खुशहाल कर दे। अल्लाह अगर वो बेरोज़गार है अल्लाह तो उसे रोज़गार दे दे। ए अल्लाह अगर वो कारोबारी नहीं है उसे कारोबार बना दे। अल्लाह इस बच्ची जो आज यहाँ से 20 बच्ची का डोली उठेगा, जो 20 बच्ची विदा होगी, ए अल्लाह इस बच्चियों के दुआ से हमारे तमाम अराकीन बैतुल माल, तमाम ओहदेदारान बैतुल माल, तमाम रज़ाकारान बैतुल माल और उन 40 नंबर वार्ड के तमाम लोगों और तमाम दुकानदार भाई जितने भी मदद किए, शहर कलकत्ता के जितने लोगों ने भी ताउन किया, ए अल्लाह इन बच्चियों की विदाई और इनके मोहब्बत के सदक़े में हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह बदल दे। हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह फलाह और बहबूद की तरफ ले जा। हम सब की ज़िंदगी में जो गुनाह है, ख़ता है, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इस नेक अमल के चलते अल्लाह पूरी 39 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 43 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड, ये जो हमारा जोड़ा साकू इलाका है शहर कलकत्ता है, अल्लाह इनमें जितने भी लोग हैं परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह उनको तकलीफ़ों को दूर कर दे और सबसे अफजल अल्लाह गज़ा पर रहम कर। इज़राइल का जो मज़ालिम है, जो जुल्म है, अल्लाह हम सब दुआ करते हैं, इस मन से भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह करम कर दे, इनायत कर दे, मेहरबानी कर दे। अल्लाह गज़ा वालों पर अल्लाह रहमत और बरकत अता फरमा। अल्लाह कातिलों को अल्लाह खुदा का अजाब नाजिल अता फरमा और पूरे गज़ा और जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर अल्लाह तेरी रहमत और बरकत नाजिल हो। इस मन से हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला हमारे बीच आज जो नहीं रहे, अव्वल शादी से लेके 15 शादी तक जिन लोगों ने जिस तरह से मदद किया, अल्लाह उनके घर को भी आबाद कर दे, उन्हें भी आबाद कर दे। अल्लाह सबों को इस प्रोग्राम में और इस शादी में जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह हम लोग हज करके आए हैं, हाजी बरकत अली, मैं भी हाजी, खुर्शीद आलम पांडे भाई भी हाजी, जितने लोग भी, अल्लाह हम लोग फिर जाएंगे उम्रा में। अल्लाह बरकत साहब हर साल उम्रा में जाते हैं। हम लोग जिन लोगों ने ये 16वां शादी में मदद किया है, इंशाअल्लाह वादा करते हैं
मक्का और मदीना में भी उसके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह से यहाँ भी दुआ करते हैं जिन जिन लोगों ने जरा सा कतरा बराबर में मदद किया अल्लाह तन से धन से मन से हर तरह से अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह उनके परिवार को खुशहाल कर दे। ए अल्लाह उनकी तमाम अरमानों को पूरा कर दे। बद नजरों से बचा, बुरी नजरों से बचा, सेहत अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, दीन की दौलत अता कर। আজকের এই অনুষ্ঠান কত বছরের হলো? 16 16 जसीम भाई आइंदा के लिए क्या लाए अमल इस्तेमाल के कर रहे हैं आप लोग 2024 की शादी 25 के लिए? सबसे पहली बात अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फानी कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। सबको मौत का मजा चखना है। मुझे पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, किसी को पता नहीं कब मर जाओगे। अगर जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह रहमान 17वां शादी में मुलाकात होगी और अगर मर गए तो मैं तो जानता हूँ अल्लाह जिससे काम लेना चाहेगा उससे काम लेगा। कितने आए कितने गए, ना गौरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जसीमुद्दीन की क्या हैसियत है। देखिए हम लोग अगस्त महीने में सभी लोग जानते हैं और आपको बता रहे हैं ऑन कैमरा, अगस्त महीने से हम लोग 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त से हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं। मगरिबी बंगाल के कोई भी बाशिंदा मगरिबी बंगाल का रहने वाला जिनका वोटर आईडी कार्ड मगरिबी बंगाल का होगा वो दरख्वास्त देंगी, वो बच्ची दरख्वास्त देंगी या उनके वालिदैन दरख्वास्त देंगे। और उनमें सबसे बड़ा शर्त यह है कि वो मगरिबी बंगाल का रहने वाला होना चाहिए, बाशिंदगान मगरिबी बंगाल होना चाहिए, रियासत मगरिबी बंगाल का बाशिंदा। ये पहला शर्त है, किसी भी ज़िला से हो। और दूसरा शर्त यह है कि जो हमारे मुल्क का जो कानून है शादी के मुतालिक 18 साल और 21 साल, यहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर बहुत सारा वक्त में ऐसा भी जामा पड़ता है एप्लीकेशन 2 महीना बाकी 18 साल को, तो कहते हैं माँ बाप की शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मुआवजा चाहते हैं। हम लोग यहाँ इज्तिमाई शादी में हमारे मुल्क का दस्तूर का जो कानून है उस कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। हम लोग का ये पहला शर्त है कि हमारे देश का जो कानून है शादी के मुतालिक सही कानून मैंने से 100 तारीख मान करके हम लोग शादी करते हैं। तो अगस्त महीना में एप्लीकेशन देते हैं लोग, हम लोग नवंबर में जाके इसको क्लोज कर देते हैं। नवंबर महीना में क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग का 1 महीना दिसंबर महीना इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी और इंक्वायरी करने में तमाम बातें जब ठीक हो जाती है तो हम लोग उनको इतला कर देते हैं कि आपका फाइनल हो गया। और हर बार हम लोग जनवरी में करते हैं शादी, और इस बार 14 तारीख हो गया। ये थोड़ी हम लोग की गलती हो गई, बाद में महसूस हुआ। आज हम आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कल हमारे मेयर, ऑनरेबल मेयर और मंत्री जनाब फरहाद हकीम साहब से बात हो रही थी। फरहाद हकीम साहब ने कहा जैसे मैं पिछला साल भी गया था और इस साल भी जरूर जाता, लेकिन ममता बनर्जी ने मुझे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने मुझे विशेष जिम्मेदारी गंगा सागर मेला में दी है, जहां बंगाल नहीं बल्कि बंगाल के बाहर के लोग भी आते हैं। मैं फरहाद हकीम, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप दुआ देना मेरे तरफ से, बैतुल माल को कहना, बैतुल माल के लोगों को कहना, फरहाद हकीम मेयर आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। फरहाद हकीम मेयर साहब की दुआएं आपके साथ है। और 14 तारीख जो है गंगा सागर होने की वजह कर आप महसूस कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे रहनुमा हमारे आए और आते रहेंगे, लेकिन गंगा सागर मेला आज है 14 तारीख को, इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि आइंदा जो साल जो शादी होगा हम आज ही ऐलान करते हैं। हम बातचीत किया आपस में, 19 जनवरी को हम लोग 17वां शादी का डेट आज ही डिक्लेयर कर देते हैं। आइंदा 2025 में जो 17वां मास मैरिज होगा वो 19 जनवरी होगा, क्योंकि आप देखिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। इस बार जो है 18 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है, तो पीछे सामने बार जो है वो 13 दिन पीछे हो जाएगा, यानी कि 6-7 आ जाएगा। अगर हम 8 करते हैं या 14 करते हैं तो सारे आधा से आधा लोग अजमेर में रहेंगे। इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए तीसरा हफ्ता जो है 19 जनवरी, आइंदा 17वां मास मैरिज 19 जनवरी को इरादा है करने का। बाकी अल्लाह तबारक व तआला, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता, कोई आबाद नहीं कर सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो अव्वल व आखिर जो है वो है अल्लाह। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आइंदा 2025 में 19 जनवरी को 17वां मास मैरिज में आपसे मुलाकात होगी। आज के 20টা রাশি একটি অনবদ্য উদ্যোগ। দেখুন, রাজনৈতিক কর্মীরা নানান রকমের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান তো করেই, কিন্তু প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সাথে যদি একটা সামাজিক বার্তা পৌঁছয়, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার।
এই যে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা যারা যাদের আজকে এখানে যারা প্রাপ্তবয়স্ক যারা বিয়ে আজকে এখানে আয়োজন করা হয়েছে, আপনি এই যে বিয়েটা করানো হচ্ছে সেটা মূল কথা না, তাদের একটা সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেটাই মূল কথা। আজকে মা বাবারা তারা যতই সম্ভ্রান্ত পরিবারের হোক কিংবা যতই গরিব পরিবারের হোক, তারা চায় যে তাদের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে তারা খুব বড় করে করবে, কিন্তু সবার সামর্থ্য থাকে না সেটা করার। আজ বাইতুল মাল কেলাবাগান জসিমউদ্দিনজির মতন লোকেরা এগিয়ে আসে এবং মাস ম্যারেজ বললেই মাস ম্যারেজ, কিন্তু আপনারা আজকের আয়োজন দেখুন, একেবারে মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি লেগেছে। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। সমাজে এরম কাজ যদি হতে থাকে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি পায়, এর থেকে বড় কথা তো আর কিছু হতে পারে না। খুবই ভালো লাগছে আজকে এখানে এসে। ये मास मैरिज का जो प्रोग्राम हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। गरीब घर का बेटी को शादी दिलाने के लिए गरीब घर का बाप माँ बहुत दुखी में होता है, क्योंकि पैसा का अभाव है। आज ये काम मास मैरिज करके उसका घर का जो दुख है वो मिटा रहा है। गरीब घर का बेटी को अच्छे से शादी करा के वो लोग के दिल में भी खुशी लाए। ममता बनर्जी तो यही चाहते हैं कि गरीब घर का जो बेटी लोग उसको शादी के लिए ममता बनर्जी ने 25,000 करके कुछ चेक भेजते हैं। ये चीज ममता बनर्जी छोड़कर और कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं किए। ऐसा दिल ममता बनर्जी का है और उन्हीं का फलवार हम लोग है। जसीमुद्दीन भी उनका फलवार है। उन्हीं का ये जो बात है, सोच है, इस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रोग्राम करते हैं। मास मैरिज बहुत अच्छा सोशल सबसे अच्छा प्रोग्राम है, तो हमको लग रहा हो रहा है। और इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है जिसको हम जरूर तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। बहुत अच्छा किया है। आगे चलते प्रोग्राम जब भी करेंगे आपको बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे इसको सपोर्ट करने के लिए। कोलकाता के और वार्ड जितने वार्ड है उसमें भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। अगर कर पाए तो बहुत अच्छा, ऐसा हेल्प कर पाए सब, अगर बहुत अच्छा। पॉलिसवाल करते हैं हमारा, पॉलिसवाल बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपना वार्ड में करते हैं और थोड़ा कम ही हो रहा है। ये ज्यादा होने से अच्छा। जसीमुद्दीन साहब के इस कदम से क्या लगता है, क्या कहेंगे जसीमुद्दीन साहब? जसीमुद्दीन ऐसा एक इंसान है जिसके दिल में कभी कम्युनल थिंकिंग नहीं है। हम लोग कम्युनल हार्मोनी बचाने के लिए कोशिश करेंगे, सब मिलजुल के चलेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। कहीं कम्युनल हार्मोनी ब्रेक हुआ और समाज थोड़ा मुश्किल में पड़ा, ऐसा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी चाहते हैं समाज में सब मिलजुल के चलेंगे, कोई भी कौम का हो एक साथ मिल के चलेंगे। यही हम लोग को बात बोलना है। देखिए आज जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छा काम है। राम मंदिर इसको राजनीति के हिसाब से व्यवहार जो हो रहा है ये गलत काम हो रहा है। हम लोग चाहते हैं राम जी का मंदिर हो और उसको आगे इलेक्शन के लिए ये ऑर्गेनाइजमेंट कर रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं, हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो। मैरिज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम जसीमुद्दीन ये हर साल में करते हैं, मैं भी आता हूँ। ये मास कम्युनिटी मैरिज डेली पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि जो पिता ओ जो डॉटर को फादर को शॉर्टेज है, कमती है, घटती है, तो उन्होंने कितना खुश आ जाता है। हमारा प्यार बनती है, उनका उन्हें शामिल हो जाता है। जसीमुद्दीन का तरह ही एक जो सबको लेके आगे चल रहे हैं। नया उन्होंने बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडर्स मजबूती या प्यार से आए। मैं आशा करता हूँ कि ये कभी हर साल में चले।